So hello everyone, welcome to iQuanta CLAT preparation. This is Ayush and you're watching iQuanta CLAT. So students, listen to me very carefully. In the last 3 days before your CLAT 2026 examination, your marks don't increase because you study more, but they increase because you remove the mistakes that are silently reducing your score, right? And what you're gonna do today, tomorrow, and the day before your CLAT 2026 examination are gonna decide whether your preparation actually shows up on the exam day or not, right? Though I believe and I am trust you guys that you are gonna perform on the D day, but still, let's have a discussion upon what your final 3 days should be like, what should be the final strategy for the last 3 days before your CLAT 2026 examination, and what to do in these 3 days, what not to do to push your scores, right? So with this, let's start with our session. So we are gonna discuss the last 3 days strategy, a precision based plan for your optimal performance on the D day, right? So with this, let's start with the session. So let's first discuss what is the purpose of this strategy, students, right? So if we talk about the purpose, so obviously the purpose is, so in the final 3 days, the objective is not expansion. Expansion means कि you don't have to now expand the topics or expand the same thing or revising the same thing again and again. Rather, this time is for consolidation, stability, accuracy, controlled performance and cognitive preservation. अब इसका क्या मतलब है students? Consolidation का मतलब कि whatever you have studied, whatever you have, the study material you have, you just have to consolidate that. Consolidation का मतलब क्या है कि जो अब आपने फाइनल इतने टाइम से, अब 12 महीने से जो भी आपने नोट्स बनाए जीके करंट अफेयर्स के, जो भी आपने लीगल रीजनिंग के नोट्स बनाए, उन सबको अब आप कंसोलिडेट करो, एक जगह इकट्ठा करो और क्विक रिवीजन उनका करना है. वो रिवीजन कैसे करना है वो भी हम लोग स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, ठीक है? सो यू जस्ट हैव टू कंसोलिडेट ऑल योर नोट्स नाउ, यू डोंट हैव टू एक्सपैंड दैट. देन स्टेबिलिटी, स्टेबल होने की जरूरत है. अब 3 ही दिन बचे हैं, ठीक है? तो 3 दिन में वी नो कि your mind, it should be wandering here and there, thinking several things, overthinking several things, right? But this is not the time to overthink anything. Your work, it is to give exam, not to think about the result for now. रिजल्ट के बारे में सोचना पेपर देने के बाद, बट जब तक पेपर नहीं दे रहे हो, अभी 3 दिन है पेपर देने में, तो मेक योर माइंड स्टेबल, ठीक है? अपने माइंड को स्टेबल करो, फोकस करो सिर्फ एग्जाम पे. ऑलराइट, देन एक्यूरेसी. आई एम स्टिल सेइंग द सेम थिंग स्टूडेंट्स कि अभी भी 3 दिन बचे हैं. Don't go behind, or don't go behind rushing the questions. I would say कि अभी भी आप एक्यूरेसी पे ध्यान दो. 5 मिनट में अगर आपसे, मैं कह रहा हूँ 10 क्वेश्चन हो रहे हैं टोटल और 10 में से आप 5 गलत कर रहे हो तो कोई पॉइंट नहीं है. लेकिन अब वहीं अगर आप 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो 6 के 6 एक्यूरेसी के साथ, तो दे आर गोना गिव यू मोर मार्क्स, ठीक है? तो मेक श्योर कि you need to be accurate, you still need to be accurate. Don't go behind speed, rather chase accuracy. Then controlled performance, you need to make sure that your performance is controlled. Means कि आप पांचों सेक्शन को साथ में लेके चल रहे हो. किसी एक सेक्शन में बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म नहीं होना है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है किसी एक सेक्शन को. सब इंपॉर्टेंट है, सबको साथ में लेके चलना है. एंड देन cognitive preservation, so you need to preserve your mind, your mental well-being as well. You need to make sure that you are mentally fit enough to clear the examination on D-Day. ऐसा नहीं कि मॉक में आप कर करके, प्रैक्टिस कर करके ही अपने आप को एकदम थका लो. तो प्रिजर्व करके रखो अपनी माइंड को, अपनी एनर्जी को, राइट? बिकॉज एवरी आवर मस्ट री इन्फोर्स वॉट यू ऑलरेडी नो. एवरी आवर मस्ट री इन्फोर्स, मतलब कि हर घंटे आपको फिर से वो री इन्फोर्स करना है वॉट यू ऑलरेडी नो एंड एलिमिनेट वोलेटिलिटी, ठीक है? जो चीज़ें वोलेटाइल है, जिनके आने के चांसेस कम है, उनको आप स्किप करो. एक आध बार पढ़ रखा है, जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं ना वी से कि yes they might come, you should be knowing the basics. तो don't just read the basics again and again. just make sure कि जितना आपने कर रखा है, जो वोलेटाइल टॉपिक्स है उनके लिए मैं कह रहा हूँ, उनको आप जितना आप अटेम्प्ट कर पाओ, जितना आपको आता हो बेसिक, आपको एक उसका ना ओवरव्यू होना चाहिए बस. बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको कुछ टॉपिक्स को अवॉइड ही करना है, ठीक है? देन मूविंग अहेड इज गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर द फाइनल 72 आवर्स, ठीक है? अब फाइनल 72 आवर्स में आपको कौन से प्रिंसिपल्स गाइड कर रहे हैं, मतलब कायदे से आपको व्हाट शुड बी योर गाइडिंग प्रिंसिपल्स, किन प्रिंसिपल्स के थ्रू आपको अपने 3 डेज को लेके चलना है स्टूडेंट. सो फर्स्ट थिंग इज नो न्यू कंटेंट इंट्रोडक्शन. अब कोई नया कंटेंट इंट्रोड्यूस नहीं करना है किसी भी सेक्शन में, ठीक है? 3 ही दिन बचे हैं. शॉर्ट हाई क्वालिटी रीइंफोर्समेंट साइकिल्स. रीइंफोर्समेंट मतलब रिवीजन साइकिल्स, छोटे
और हाई क्वालिटी के। मान लो आप 20 मिनट्स ही फोकस कर पा रहे हो एट दिस पॉइंट, तो ये नहीं कि जबरदस्ती आप 1 घंटे का लेकर बैठो, नहीं 1 घंटे रिवाइज करूंगा, 20 घंटे तो आपने फोकस किया, 40 मिनट आप बस फॉर्मेलिटी के लिए बैठे रहे, जस्ट फॉर योर सेक कि हाँ मैंने एटलीस्ट रिवाइज किया। तो बेटर कि अगर आप 20 मिनट फोकस कर पा रहे हो तो 20 मिनट्स शॉर्ट हाई क्वालिटी अच्छा रिवीजन करो, अगेन थोड़ा इधर उधर से अपना माइंड बहला कर आओ, फिर उसके बाद रिवीजन करने बैठो। मीन्स 20 मिनट्स रिवाइज, अगेन 5 मिनट्स ब्रेक, देन 20 मिनट रिवीजन, देन 5 मिनट ब्रेक। तो मेक श्योर कि आपकी रीइंफोर्समेंट साइकिल ना शॉर्ट हो, हाई क्वालिटी हो। अगर आप लंबे टाइम तक भी रिवाइज कर पा रहे हो तो इट्स वेल एंड गुड, बट आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल जो स्टूडेंट्स की एक अप्रोच रहती है, ठीक है। देन कंट्रोल्ड लो वॉल्यूम प्रैक्टिस। लो वॉल्यूम प्रैक्टिस मतलब एक ही टॉपिक की बार बार प्रैक्टिस नहीं करनी है। एक सीआर का सेट कर लिया, देख रहे हो कि एक्यूरेसी आ रही है, मिस्टेक फिगर आउट कर पा रहे हो जस्ट इन केस अगर कोई हुई है, दैट्स एनफ, ठीक है। कंट्रोल लो वॉल्यूम प्रैक्टिस करनी, बार बार एक ही चीज को कि नहीं यार अभी मैंने सीआर का पैसेज किया, 4 ही क्वेश्चन सही हो, चलो एक और लगाता हूँ, 5 और सही होंगे, फिर पता चला फिर 3 सही हो रहे हैं, फिर 4 सही हो रहे हैं। तो रादर गोइंग बिहाइंड दैट थिंग कि नहीं, आई विल बी रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन until unless I am totally okay in that. Don't go behind that. Make sure you are practicing in a controlled and low volume practice, right? Then the most important thing is error pattern recognition and correction. Now at this point of time students, 3 ही दिन बचे हैं, 3 दिन में आप अपनी कमियों को जितना पहचान सकते हो ना वो पहचानो। अब वो कैसे करना है, उसे कैसे ठीक करना है, वो भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, बट द गाइडिंग प्रिंसिपल्स एज वी आर डिस्कसिंग। सो अगेन दिस इज आई वुड से द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइडिंग प्रिंसिपल कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड टू रिकॉग्नाइज योर एरर पैटर्न कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, वो किस टाइप की गलती है, ठीक है। देन कॉग्निटिव फ्रेशनेस इज बेटर देन टोटल स्टडी आवर्स। अगेन कि कॉग्निटिव फ्रेशनेस रखनी चाहिए आपको, टोटल स्टडी आवर्स मैटर नहीं करते अभी भी। हो सकता है किसी को 6 घंटे दिन का पढ़ने के बाद उतना फील हो रहा हो जितना कोई दिन का 4 घंटे में कर लेता है, तो सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी। सो कॉग्निटिव फ्रेशनेस रखनी है आपको अपने माइंड में। कोई 6 घंटे पढ़ के थकता है, कोई 8 घंटे, कोई 4 घंटे, तो यू डोंट नीड टू ड्रेन योरसेल्फ, कीप योर माइंड फ्रेश। वो टोटल स्टडी आवर्स से ज़्यादा मैटर करता है कॉग्निटिव फ्रेशनेस होना। देन स्टेबल रूटीन इज स्टेबल परफॉर्मेंस। रूटीन अगर आपका स्टेबल रहेगा, आप एक टाइम पे उठ रहे हो, एक ही टाइम पे आपकी सारी जो दिनचर्या है वो आप जो एक रूटीन होता है वो अगर आप स्टेबली कर पा रहे हो डेली, तो यस स्टेबल परफॉर्मेंस भी आएगी ऑन द डी डे, राइट। देन मूविंग अहेड इज सेक्शन 1 स्ट्रक्चर ऑफ द लास्ट 3 डेज, ठीक है। व्हाट शुड बी योर स्ट्रक्चर फॉर द लास्ट 3 डेज। अभी लास्ट 3 डेज में आपको कैसे अपने दिन को स्ट्रक्चर करना है, ठीक है। सो डेली फ्रेमवर्क एप्लीकेबल टू ऑल 3 डेज। अभी आपको तीनों दिन ये फ्रेमवर्क है, ये तीनों दिन अब आपको फॉलो करना है, आज कल परसों, ठीक है। तो ईच डे शुड कंटेन, मॉर्निंग में सबसे पहले क्या करना है, तो मॉर्निंग में सबसे पहले लो वॉल्यूम बट हाई फोकस रीजनिंग करनी है आपको, बिकॉज क्लैट is a paper which is reasoning based. CLAT is not about rote memorization. rote memorization मतलब rectification. तो rectification based exam नहीं है। Again I am saying कि reasoning पे आपको काम करना है। तो सुबह उठते ही जब मतलब mind fresh होता है उस टाइम पे आपको लो वॉल्यूम, अगेन लो वॉल्यूम मतलब कि सेम चीज पे नहीं रिपीट करना है, आपको सेम चीज की प्रैक्टिस नहीं करनी है। एक मान लो आपने सेट फैमिली लॉ का कर लिया, फिर एक क्रिमिनल लॉ का कर लिया, ठीक है। तो हाई फोकस रीजनिंग आपको प्रैक्टिस करनी, लो वॉल्यूम मतलब एक एक सेट कर लो आप सबका, ठीक है। एक सेट कर लो या एक मिक्स सेट कर लो जिसमें सबका आ जाए। देन आफ्टरनून में क्या करना है आपको, ब्रीफ स्ट्रक्चर्ड रिवीजन ब्लॉक्स, ठीक है। आपको दोपहर के टाइम पे अब जो चीज़ें रिवाइज करने वाली, जीके करंट अफेयर्स में है जो कुछ चीज़ें रिवाइज करने वाली या जो भी आपको रिवीजन करना है, तो आप अपने रिवीजन ब्लॉक्स बना लो कि भाई 2 से 3 के टाइम, 2 से ढाई में मैं नेशनल न्यूज़ रिवाइज कर लूँगा, इस इतने से इतने मंथ की मैं लास्ट 3 मंथ्स के नेशनल न्यूज़ रिवाइज कर लूँगा 2 से ढाई पे। 3 से फिर 2.5 से 3 में मैं नेक्स्ट 3 मंथ्स के नेशनल न्यूज़ रिवाइज कर लूँगा, फिर 15 मिनट का ब्रेक लूँगा, फिर मान लीजिए 3:30 से 4 बजे तक मैं इंटरनेशनल न्यूज़ कवर कर लूँगा, जनवरी टू मार्च या जनवरी टू सपोज अप्रैल में, वॉट एवर इट इज़ योर कैपेसिटी। सो वॉट आई एम सेइंग कि इसकी 1 बजे आप बैठो, सोचो कि दोपहर में मैं 1 बजे पढ़ने बैठो, 6 बजे उठूंगा, वो कोई फ़ायदा नहीं। आप 1 से 1:30 बजे तक पढ़ो, 2 बजे तक पढ़ो, फिर ब्रेक लो, फिर उसके बाद अगले ब्लॉक का रिवीजन शुरू करो। तो ऐसे ही ना आप मतलब आपको ब्रीफ स्ट्रक्चर्ड रिवीजन ब्लॉक्स रखने हैं, मतलब रिवीजन करना है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नहीं, ब्रीफ रिवीजन करना है, मतलब सिर्फ हेडिंग पढ़ लो। और उसको भी ना बाइफरकेट करके कि भाई इतने टाइम में नेशनल न्यूज़, ठीक है,
3 महीने का, ये एक ब्लॉक हो गया, तो ये मैं इतने आधे घंटे में करूंगा, फिर मैं ब्रेक लूंगा, उसके बाद मैं आगे के आधे घंटे का रिवाइज करूंगा, ठीक है। देन इवनिंग में आपको क्या करना है, इवनिंग में लाइट प्रैक्टिस, हल्की प्रैक्टिस, सेक्शनल मॉक लगा लो एक, प्लस एक्यूरेसी रीइंफोर्समेंट। अगेन एक्यूरेसी पे आपको काम करना है, टाइम पे नहीं काम करना है, अभी भी एक्यूरेसी पे काम करो, दैट विल फेच यू मोर मार्क्स। देन नाइट में आपको क्या करना है, अगेन कंसोलिडेशन प्लस मेंटल डीकंप्रेशन। अब आपने सुबह से लेकर के जो रात तक खुद को अपने आप को जो ओवरलोड किया है इंफॉर्मेशन के साथ, ठीक है, जो आपका पूरा ब्रेन फंक्शनिंग था सुबह से शाम तक, अब उसको थोड़ा सा आपको कंसोलिडेट करना है कि हाँ ठीक है, आई हैव स्टडीड for the day, I have made my revision, I have done the practice, and you just have to make yourself believe कि yes, I have done what is required and what is required to clear my examination. I am doing all those things, and just make sure that you are consolidated in mind, you are not confused, you are not overreacting, and plus mental decompression। शाम को अपना आपको थोड़ा सा ना मेंटली फ्री रखना है खुद को। देन सोने का टाइम स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करोगे, 2:30 मतलब 10:30 PM तक आप लास्ट 10:30 बजे तक रात सो जाओ, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर स्टेबलाइजेस कॉग्निशन एंड एंश्योर्स एग्जाम रेडीनेस। देन मूविंग अहेड इज डे वाइज प्लान अब क्या आपका होना चाहिए, ठीक है। अभी तो हमने यहाँ पे जो डिस्कस किया ये डेली का फ्रेमवर्क था जो आपको डेली फॉलो करना है। अब डे वाइज प्लान आज का, कल का और परसों का क्या होना चाहिए। सो डे 1 डायग्नोस्टिक, कैलिब्रेशन एंड एरर मैपिंग। अब मेन स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट थिंग चीज़ ये है, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है ना, आई बिलीव आपको समझ में आ रही हो एरर मैपिंग क्या होता है, ठीक है। एरर मैपिंग मतलब कि यू नीड टू मैप योर एरर्स एंड यू नीड टू क्लासीफाई बिटवीन सर्टेन कैटेगरीज कि मेरी जो ये गलती है ये कौन सी टाइप की गलती, ठीक है। अब आप समझा देता हूँ मैं आपको। सो व्हाट इज योर एम? एम इज टू आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस इंस्टेबिलिटी एंड अलाइन द फाइनल 72 आवर्स अकॉर्डिंगली, राइट। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई योर परफॉर्मेंस इंस्टेबिलिटी, कहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस इंस्टेबल हो रही है, और अलाइन करना, उसको ठीक करना है विद इन दीज 72 आवर्स। टास्क क्या है आपका? सबसे पहले एक कंट्रोल लो प्रेशर मॉक अटेम्प्ट करो। कंट्रोल मतलब कि कोशिश करो 2 घंटे के फ्रेमवर्क में जो टाइम होता है, जो कंट्रोल टाइम्ड, कंट्रोल मीन्स टाइम्ड मॉक, ठीक है। अभी दिस इज, अब आप कहना कि सर आप तो कहते हैं एक्यूरेसी के पीछे जाना है, टाइम के पीछे नहीं जाना है। वो एक्यूरेसी के पीछे जब आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो तब जाना है, ठीक है। अभी आपको जब एरर मैपिंग करनी है, अपनी आपको गलतियां पहचाननी, तो उसके लिए तो आपको टाइम्ड कंडीशन में ही देना पड़ेगा। तो अटेम्प्ट 1 कंट्रोल्ड लो प्रेशर मॉक, मतलब ज्यादा प्रेशर में नहीं देना है, ठीक है। देन इमीडिएटली क्लासीफाई योर एरर्स। अब आपकी जो एरर्स है ना 5 तरीके की हो सकती हैं। फर्स्ट इज कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन मतलब कि आपने आरसी पढ़ने में कोई गलती कर दी। सेकेंड इज इन्फरेंस सॉर्ट ऑफ मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, जो ऑब्वियसली या तो सीआर या इंग्लिश में होगी। देन कैलकुलेशन, कैलकुलेशन मिस्टेक है, वो क्वांट्स में अगर होनी होगी तो। एलिमिनेशन, ये लीगल में भी हो सकती है, सीआर में भी हो सकती है, इंग्लिश में भी हो सकती है, ठीक है। या फिर मिस रीडिंग, ठीक है, या आपसे पढ़ने में कोई क्वेश्चन पढ़ने में गलती हो गई, फैक्ट्स पढ़ने में गलती हो गई। तो देखो एक यही चीज़ हो सकती है स्टूडेंट्स, 5 तरीके की आप गलती कर सकते हो। क्योंकि देखो मोस्ट प्रोबेबली अगर आपका क्या कहते हैं, अगर आपका सपोज आपको कोई क्वेश्चन के बारे में नहीं पता है तो आप उसको मोस्ट प्रोबेबली छोड़ के ही आ जाओगे। अगर इफ यू डोंट नो अबाउट एनी क्वेश्चन, सपोज यू डोंट नो अबाउट द कंसेप्ट विच इज बीइंग आस्क्ड इन एनी क्वेश्चन, सो मोस्ट प्रोबेबली आप उसे छोड़कर ही आओगे, ठीक है। तो कंसेप्चुअल मिस्टेक्स होना क्लैट में थोड़ी कम पॉसिबिलिटी होती, बट स्टिल कभी कभी ऐसा होता है कि हमें नॉलेज ही गलत होता है। तो देयर इज, यू नीड टू फिगर आउट आफ्टर अटेम्प्टिंग 1 कंट्रोल्ड टाइम्ड मॉक कि इज माई एरर आफ्टर डूइंग द एनालिसिस कि विच टाइप ऑफ एरर यू आर मेकिंग, कि आपको कंसेप्ट में कुछ गलती थी, आपने कंसेप्ट गलत तरह से समझा हुआ था, ठीक है, कॉम्प्रीहेंड आपने गलत किया, इन्फरेंस बेस्ड मिस्टेक हुई, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, एलिमिनेशन में आपसे गलती हुई है, या फिर मिसरीडिंग हुई है, ठीक है। तो आप अपनी मिस्टेक्स को जब क्लासीफाई कर लोगे ना इन कैटेगरीज में, तो आपको एटलीस्ट पता चलेगा कि अच्छा मैं इस तरीके की गलती करता हूँ, मैं बार बार मिसरीडिंग कर रहा हूँ, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा मेरी गलती मिसरीडिंग की वजह से हो रही, मैं इस एरिया पे मेरे काम करूंगा, राइट। देन कंस्ट्रक्ट अ 3-day माइक्रो प्लान टारगेटिंग ओनली और रिकरिंग एरर कैटेगरीज, ठीक है। अब आपको 3 दिन का एक माइक्रो प्लान बनाना होगा इस पे बेस्ड, ठीक है। टारगेट करना होगा ओनली दोज एरियाज जहां पे आप एरर्स को रिकर कर रहे हो, बार बार वही गलती रिपीट कर रहे हो, ठीक है। एंड डू नॉट इंट्रोड्यूस एनी न्यू रीडिंग मटेरियल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। अब इस टाइम कोई भी नया नहीं कि सर अरे मैंने वो टॉपिक नहीं करा है, अब जो हो गया सो हो गया, अब कोई नई फाइल नहीं खोलनी, ठीक है। आउटकम इसका क्या होगा? अ पर्सनलाइज्ड मैप ऑफ रीडिफाइनमेंट ऑफ फॉर द रिमेनिंग 48 आवर्स। अगर आप आज ये सब कर लोगे तो अगले 2 दिन के लिए आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा मेरी गलती इस कैटेगरी में फॉलो हो रही, तो आई नीड टू वर्क ऑन
my this skill, right? Then moving ahead, नाउ द डे 2, डे 1 में हमें एरर मैपिंग करनी है। अभी डे 2 का हमारा क्या टास्क होगा, एक्यूरेसी कंसोलिडेशन अक्रॉस कोर सेक्शंस, ठीक है। अब आपने डे 1 में एरर मैपिंग कर ली कि आई एम डूइंग दीज एरर्स, ठीक है, दिस टाइप ऑफ एरर्स आई एम डूइंग, ठीक है। नाउ यू हैव टू मेक श्योर कि अब आप एक्यूरेसी पे काम करो सेकेंड डे पे, मतलब आप आज अपनी गलतियां फिगर आउट कर लो, जो भी अब लास्ट मिनट सिली मिस्टेक्स आप कर रहे हो, क्लासिफाई कर लो किस कैटेगरी में जा रही। कैटेगरी एक बार आपको मिल जाएगी तो आप फिर उसमें ना बहुत इजीली उसमें एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए काम कर सकते हो। सो द एम फॉर द डे 2 इज टू रीइंफोर्स रीजनिंग एक्यूरेसी, बिकॉज क्लैट इज रीजनिंग बेस्ड एग्जाम। रीजनिंग एक्यूरेसी अंडर मॉडरेटेड कॉग्निटिव लोड। अब आपको थोड़ा सा हल्का सा खुद को लोड देते हुए एक्यूरेसी पे भी काम करना है, ठीक है। टास्क आपका क्या होना चाहिए, एक इंग्लिश आरसी पैसेज सॉल्व करो, एक लीगल रीजनिंग पैसेज, एक लॉजिकल रीजनिंग पैसेज सॉल्व करो, 10-15 लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करो, मींस अराउंड 2 to 3 पैसेजेस, और एक डीआई सेट कर लो टाइम्ड कंडीशन में, ठीक है। टाइम्ड कंडीशन में से करोगे कि जस्ट इन केस अगर कैलकुलेशन मिस्टेक्स आप कर रहे हो टाइम की वजह से, कम टाइम होने की वजह से, तो आप फिगर आउट कर पाओगे वो। अभी तो आप फिगर आउट ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। देन रिव्यू ऑल इनकरेक्ट अटेम्प्ट्स टू आइडेंटिफाई रीजनिंग फेलियर्स, ठीक है। यू नीड टू रिव्यू योर ऑल इनकरेक्ट अटेम्प्ट्स, कि मेरे जो अटेम्प्ट्स थे जो इनकरेक्ट थे उनको रिव्यू करने के बाद यू विल आइडेंटिफाई कि कहां पे आपसे रीजनिंग फेलियर हो रहा है, ठीक है। देन रीअटेम्प्ट ओनली द क्वेश्चंस यू गॉट रॉन्ग। एक बार जब आप रिव्यू कर लो उसके बाद फिर से उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो जो गलत हो गए थे, ठीक है। आउटकम क्या होगा, शार्पर इंटरप्रेटिव एबिलिटी, रिड्यूस्ड एरर फ्रीक्वेंसी एंड इंप्रूव्ड कंसिस्टेंसी, राइट। देन मूविंग अहेड इज डे 3 प्री एग्जाम कॉग्निटिव कैलिब्रेशन। अब ये आपको सैटरडे को क्या करना है, हाउ योर सैटरडे शुड लुक लाइक। सो एम इज टू प्रिजर्व योर मेंटल शार्पनेस एंड स्टेबलाइज परफॉर्मेंस फॉर एग्जाम डे। यू नीड टू प्रिजर्व योर मेंटल शार्पनेस, यू नीड टू मेक श्योर कि आपको ब्रेकडाउन ना हो, आप एंग्जाइटी में ना जाओ। ये चीज़ें होती हैं, स्टूडेंट्स अक्सर कर होती हैं। बहुत ज़्यादा मत सोचो, बस मेरा ये कहना है जितना सोचोगे वो चीज़ और उतनी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। जस्ट मेक श्योर एंड ट्रस्ट योर सेल्फ दैट येस आई हैव studied for the last 12 months, या फिर I've studied for the last whatever time you have been preparing for, and just trust yourself, right? तो टास्क आपका क्या होना चाहिए, अब सैटरडे को यू डोंट नीड टू गिव एनी मॉक टेस्ट, कोई मॉक टेस्ट नहीं देना है, सिर्फ हल्की प्रैक्टिस करनी है। एक सेक्शनल इंग्लिश का आरसी दे दो, एक लॉजिकल रीजनिंग का पैसेज कर लो, 10 लीगल के क्वेश्चन कर लो, एक डीआई का सेट कर लो, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको जीके करंट अफेयर्स क्वेश्चन करने का एडवाइस इसलिए नहीं दूंगा, जस्ट फोकस अपॉन रिवीजन ओनली, ठीक है। उनको आप रिवाइज करो, इनके एक एक सेट प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। देन 20 मिनट्स रिवीजन फॉर योर एरर नोटबुक, ठीक है। जो आपने एरर नोटबुक मेंटेन करी थी डे 2 में कि ओके दीज आर माय मिस्टेक्स आर फॉलिंग अंडर दिस कैटेगरी, तो मेक श्योर कि आप 20 मिनट्स का रिवीजन उसको भी दो। एंड प्रिपेयर एग्जाम डे रूटीन, ठीक है। एग्जाम डे में आपका क्या रूटीन होना चाहिए वो सोचो, वेकअप टाइम क्या रहेगा, क्या क्या आप लॉजिस्टिक्स लेकर जाओगे, ठीक है। आईडी डॉक्यूमेंट सब चेक कर लेना, ठीक है। मेंटल वार्म अप थोड़ा सा करके रखना। आउटकम शुड बी टू मैक्सिमाइज क्लैरिटी एंड मिनिमम कॉग्निटिव लोड, ठीक है। चलिए, देन मूविंग अहेड इज सेक्शन 2 इज अबाउट स्टडी टेक्निक्स फॉर द लास्ट 3 डेज, ठीक है। तो अभी हमने ये डिस्कस कर लिया कि हाउ योर डे शुड बी, फॉर हाउ योर लास्ट 3 डेज शुड लुक लाइक। नाउ व्हाट शुड बी योर स्टडी टेक्निक्स फॉर दीज लास्ट 3 डेज, ठीक है। तो टेक्निक 1, आई हैव कम हियर विद 2 टेक्निक्स। आपको जो अपने लिए सूटेबल लगे वो आप देख लेना। सो द फर्स्ट टेक्निक विच वी आर गोना डिस्कस इज शॉर्ट 20 मिनट्स रिवीजन साइकिल, ठीक है। फॉर व्हाट, फॉर लीगल प्रिंसिपल्स, रीजनिंग फ्रेमवर्क्स, डीआई लॉजिक्स मींस फॉर्मूलाज एंड की जीके समरीज, ठीक है। योर गोल शुड बी टू फास्ट रिकॉल एंड स्टेबल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस स्टेबल हो और जल्दी आपको याद आए। तो 20 मिनट्स की रिवीजन साइकिल बनाओ, मतलब कि आप सपोज आपने लीगल प्रिंसिपल्स रिवाइज करने, ठीक है। तो सपोज आपको कि मुझे अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करना है, ठीक है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने उठाया, ठीक है। 20 मिनट्स इसको रिवाइज कर लिया, 20 मिनट्स रिवाइज कर लिया, 5 मिनट का खुद को ब्रेक दो, अगेन 20 मिनट्स बाद कुछ और रिवाइज कर लो। लाइक आपको है कि अब मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ करना है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 20 मिनट्स रिवीजन, ठीक है। फिर खुद को ब्रेक दो, 5 मिनट का, 10 मिनट का, अगले रीजनिंग कंसेप्ट्स रिवाइज कर लो, ठीक है। तो 20 मिनट्स की रिवीजन साइकिल आप बनाओ, तो उसमें लीगल प्रिंसिपल्स कर डालो, रीजनिंग फ्रेमवर्क्स जो हैं, सीआर रिलेटेड कंसेप्ट्स वो कर लो, डीआई लॉजिक्स की जरूरत लग रही, ये की जीके समरीज। अब हो सकता है किसी को लीगल प्रिंसिपल्स ना रिवाइज करने की ज़्यादा ज़रूरत हो, इसकी ज़्यादा ज़रूरत हो जीके समरीज की, तो वो ये टेक्निक इसके लिए यूज़ कर सकता है कि लीगल प्रिंसिपल्स को अवॉइड करे, जीके समरीज को ज़्यादा टाइम दे। मतलब 20 मिनट्स का ही साइकिल बना के ज़्यादा साइकिल्स
जी के समरीज को दे दे, ठीक है। देन मूविंग अहेड इज टेक्निक टू इज हाई प्रिसीजन प्रैक्टिस, ठीक है। हाई प्रिसीजन मतलब कि जिसमें आपकी ना एक्यूरेसी लेवल थोड़ा सा इसमें बढ़ने के ज़्यादा चांसेस है। इसमें आपको फोकस करना है इन्फरेंसेस पे, स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग कंसेप्ट्स पे, एजम्पशंस पे, लॉजिकल कंसिस्टेंसी पे एंड क्लीन कैलकुलेशन रूटीन्स पे। सो दीज कॉन्स्टिट्यूट द मेजॉरिटी ऑफ हाई स्कोरिंग क्वेश्चंस। जो ज़्यादातर स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं ना, अब इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन सीआर में आते हैं, ठीक है, स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग भी सीआर में आते हैं, एजम्पशंस भी, मतलब ये आपका लॉजिकल कंसिस्टेंसी इस ये आपका क्वांट्स के लिए हो जाएगा। रेस्ट बोथ आपके इंग्लिश और सीआर में काम आएंगे, ठीक है। इंग्लिश और सीआर मतलब ये सारी टेक्निक्स आपको इंग्लिश सीआर में हेल्प करेगी स्कोर बूस्टअप करने में, विच आर रियली वेरी हाई स्कोरिंग एरियाज, बट स्टिल पीपल नहीं ध्यान कर पाते क्योंकि वो इन चीज़ों के अलावा बाकी सब पे ध्यान देते हैं। तो फोकस जस्ट ऑन दीज सर्टेन थिंग्स एंड यू विल सी योर मार्क्स इंप्रूव्ड, राइट। देन सेक्शन 3 इज वॉट नॉट टू डू इन द लास्ट 3 days। अब लास्ट 3 days में आपको करना क्या नहीं है, क्या करना है वो तो डिस्कस कर लिया, अब क्या नहीं करना है एक बार वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सो अवॉइड दीज कंप्लीटली। व्हाट थिंग्स यू हैव टू अवॉइड? न्यू जीके रिसोर्सेज अवॉइड करो टोटली, ठीक है। न्यू लॉ और केस रीडिंग्स, अब कोई नया लॉ कोई नया केस लॉ नहीं। फुल लेंथ मॉक आज दे दो बस, मैक्स टू मैक्स कल दे दो, परसों मत देना, सैटरडे को मत देना, ठीक है। लॉन्ग न्यूज़पेपर रीडिंग अवॉइड करो टोटली। हाई इंटेंसिटी और डीआई और एलआर ड्रिल्स ये नहीं करनी है, मतलब बहुत ज़्यादा टफ डीआई क्वेश्चंस या काफ़ी ज़्यादा टफ लॉजिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस नहीं करनी है। स्टडिंग बियॉन्ड 9 hours a day, 9 hours a day से ऊपर कोशिश करो मत पढ़ाई करना, ठीक है। एनी कंटेंट दैट इंक्लूड्स कॉग्निटिव फटीग, ठीक है। कोई भी कंटेंट जिसमें कुछ वेग इन्फॉर्मेशन है या कुछ ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ नहीं है या ऑथेंटिकेटेड कंटेंट नहीं, तो अवॉइड दैट कंप्लीटली, ठीक है। देन एग्जाम डे प्रिपरेशन। एग्जाम डे में अब आपको एग्जाम डे में कैसे आपने आपको खुद को प्रिपेयर रखना है। सो एग्जाम डे बिहेवियर प्रोटोकॉल हमने डिस्कस किया है कि आपका एग्जाम डे पे कैसे आपका ना हाउ यू शुड बी बिहेविंग। सो बिगिन विथ डेलिबरेट स्लो रीडिंग टू स्टेबलाइज रिदम। जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन भी आप हल्की हल्की सी रीडिंग करके जाना, ताकि ना आपका एक जो रीडिंग वाला फ्लो है, क्योंकि बिकॉज क्लैट इज अ वेरी हैवी रीडिंग बेस्ड पेपर, सो वो आपका एक फ्लो बना रहे, ठीक है। देन मेंटेन स्ट्रिक्ट सेक्शनल टाइमिंग। अब यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि आपने जितना टाइम सोचा हुआ है कि मुझे सपोज 30 मिनट्स जीके को देना है, तो वो स्ट्रिक्ट सेक्शनल टाइमिंग अब आपको मेंटेन रखनी एग्जाम डे वाले दिन, ठीक है। देन अवॉइड इमोशनल रिएक्शंस टू कॉम्प्लेक्स पैसेजेस। अब सपोज कोई पैसेज एकदम से कॉम्प्लेक्स आ गया तो ये नहीं कि एकदम मेंटली ब्रेक डाउन हो गया। कभी कभी क्या होता है ना, पहली बार पढ़ने में थोड़ा डर लगता है, अजीब लगता है, बट जब आप उसे मल्टीपल टाइम पढ़ते हो ना, दो या दूसरी या तीसरी रीडिंग दोगे तो आपको वो तब समझ में आने लगेगा। तो पहले ही ये नहीं कि एकदम इमोशनल ब्रेक डाउन हो गया या मतलब रिएक्ट आप ठीक से करो कॉम्प्लेक्स पैसेज को। व्हाट माय पॉइंट इज कि आप उसको ना इमोशनली रिएक्ट मत करना। देन प्रायोरिटाइज एक्यूरेसी जोन्स अर्ली। वो वाले जोन्स जहां पे आप ज्यादा एक्यूरेट होते हो, वो वाले सेक्शंस जिस पे आप ज्यादा एक्यूरेट होते हो, उनको आपको आइडेंटिफाई करके पहले अटेम्प्ट करना है, ठीक है। देन मैनेज क्वांट्स कामली टू प्रिवेंट ऑपरेशनल एरर्स। क्वांट्स को आराम आराम से आपको अटेम्प्ट करना है, ताकि लास्ट में आपसे ना ऑपरेट करते टाइम कोई कैलकुलेशन मिस्टेक, कोई फॉर्मूला बेस्ड मिस्टेक, कोई इस तरीके की गलती ना हो आपसे। देन अवॉइड रिस्की गेसेस इन द लास्ट 10 मिनट्स। लास्ट के 10 मिनट में कहीं आप सोचो कि यार अब गेस करता हूँ, गेस कभी मत करना। इफ यू आर श्योर अबाउट एनी क्वेश्चन देन ओनली मार्क दैट, अदरवाइज जस्ट लीव दैट, ऑलराइट। देन मूविंग अहेड इज हाउ टू इंप्रूव स्कोर्स इन द लास्ट 3 days, ठीक है। अब लास्ट 3 days में आप कैसे स्कोर इंप्रूव कर सकते हो, तो रिड्यूस एरर फ्रीक्वेंसी नॉट इंक्रीज स्पीड। स्पीड नहीं आपको अपनी इंक्रीज करनी। लोगों को लगता है कि यार मुझे अगर अपना स्कोर्स बढ़ाना है तो अपनी स्पीड बढ़ा लेता हूँ। नो, यू डोंट हैव टू इंक्रीज योर स्पीड, यू हैव टू रिड्यूस योर एरर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो मिनिमाइज मिसरीड्स, कम से कम कोशिश करो कि गलत पढ़ने की कोशिश, मतलब गलत ना पढ़ो, ठीक है। देन अवॉइड प्री मैच्योर एलिमिनेशन। अच्छा, कुछ लोगों का होता है कि ना मतलब एक बार रीड करा, फिर एक क्वेश्चन देखा और एक कंक्लूजन बना लिया कि हाँ ये ऑप्शन हटाओ, ये ऑप्शन हटाओ, एलिमिनेट करो। ये नहीं करना है, ठीक है। अवॉइड प्री मैच्योर एलिमिनेशन। प्री मैच्योर एलिमिनेशन ही जब आप प्रॉपर एक कंक्लूजन पे आ जाओ, ठीक से रीड करने के बाद, समझने के बाद, तब करो एलिमिनेट, अदरवाइज डोंट प्री मैच्योरली स्टार्ट एलिमिनेटिंग एनी ऑप्शन। देन प्रिवेंट इन्फरेंस ओवर रीच, ठीक है। इन्फरेंस ओवर रीच को आप थोड़ा अवॉइड करो एंड रिड्यूस कैलकुलेशन लैप्सेस। जो बार बार कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो रही है, मेक श्योर कि वो भी कम हो, ठीक है। बिकॉज एक्यूरेसी डिसिप्लिन इज, आई वुड से, स्टिल बेटर देन स्पीड, ठीक है। एक्यूरेट होना ज्यादा जरूरी है, स्पीड भी इंपॉर्टेंट है, बट नॉट इन द कॉस्ट ऑफ एक्यूरेसी, ठीक है।
If you are saying, sir, I have attempted 120 question in 120 minutes, so yes, you are doing good. But then you are saying कि सर मेरे 30 तो गलती हो गए थे. वही कई अगर कह रहे हैं कि सर I have attempted 80 questions, but out of those 80 questions 68 are correct. तो आई वुड से, या फिर कोई कहता है 75 आर करेक्ट, तो भाई 5 ही गलत हुए ना उसके, वो एक्यूरेट ज़्यादा है. तो मेक श्योर कि एक्यूरेसी पे आप काम हमेशा अच्छे से करना है, ठीक है. देन सेकेंड थिंग इज टू री अटेम्प्ट रॉन्ग क्वेश्चंस. अभी हम लोग वी आर डिस्कसिंग द प्लान और हाउ टू इंक्रीज योर स्कोर्स इन द लास्ट 3 days, ठीक है. तो एक फर्स्ट थिंग हमने देख ली. सेकंड इज टू री अटेम्प्ट योर रॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है. यूज द सेम एरर रिवीजन लूप जो अभी हमने डिस्कस किया था. अटेम्प्ट अगेन, आइडेंटिफाई रीजनिंग फेलियर, क्लासीफाई योर एरर पैटर्न. एरर पैटर्न को क्लासीफाई करो कि भाई ये गलती हो क्या रही है. मैं क्या डीआई को इंटरप्रेट ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं इन्फॉर्मेशन गलत लिख रहा हूँ, या मैं कैलकुलेशन गलत लगा रहा हूँ, या मुझे आता ही नहीं है वो. उसको आप लॉग में डालो कि माई दिस एरर फॉल्स इनटू दिस कैटेगरी, देन यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, ठीक है. तो दिस इंप्रूव्स मार्क्स रिलायबिलिटी इन द फाइनल विंडो. देन मूविंग अहेड इज स्ट्रेंथनिंग हाई वेट स्किल्स ओनली, ठीक है. अब जो स्किल सबसे इंपॉर्टेंट है, हाई वेटेज है, उन्हीं पे आपको सबसे ज्यादा काम करना है, ठीक है. तो हाईएस्ट ROI एरियाज आर, ROI मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि आप कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो उस पर कितना आपको रिटर्न मिल रहा है. तो इन्फरेंस अगेन हाईएस्ट ROI एरियाज, स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग, एजम्पशंस, प्रिंसिपल एप्लीकेशन लीगल में जो काम आता है, और परसेंटेज रेशियो DI, ठीक है. दीज डोमिनेट द पेपर. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज यूज टाइम्ड माइक्रो ड्रिल्स, ठीक है. टाइम्ड माइक्रो ड्रिल्स का मतलब कि भाई आपने एक RC मान लो अटेम्प्ट किया, ठीक है, तो तुरंत उसे रिव्यू कर लो 20 से 25 मिनट के अंदर. 20 मिनट इज 20 मिनट बहुत ही ज्यादा है. 5 to 10 मिनट्स आर मोर देन सफिशिएंट टू अटेम्प्ट वन पैसेज, ठीक है. तुरंत उसे रिव्यू कर लो. एक हैबिट बना लो कि 20 मिनट में मुझे एक RC को अटेम्प्ट प्लस रिव्यू करना, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है. अब ऐसा नहीं कि आप 5 RCs कर रहे हो, 5 में जब आप देख रहे हो कि नहीं मेरा 5 में 5 बार मैंने सही आंसर करा है तो ही मेरी RCs अच्छी, ऐसा नहीं है. अगर आपने एक RC पैसेज भी अटेम्प्ट किया, उसमें भी आप, मैं कह रहा हूँ आउट ऑफ 4 क्वेश्चंस यू आर गेटिंग राइट, योर एक्यूरेसी इज गुड, ठीक है. तो 1 RC प्लस रिव्यू, सिमिलरली 1 LR पैसेज प्लस रिव्यू, 10 लीगल क्वेश्चंस एंड 1 DI सेट, ठीक है. तो आपको ना टाइम्ड माइक्रो ड्रिल्स करनी है. एक बार ये कर लिया, फिर ब्रेक लिया, फिर ये किया, फिर ब्रेक लिया, फिर ये किया, फिर ब्रेक लिया, फिर ये किया, मतलब ये प्लस रिव्यू एज वेल, ठीक है. फिर ऐसे करके इट इंप्रूव्स योर क्लैरिटी प्लस कॉन्फिडेंस विदाउट फैटीग, बिना थकाए आपको, ठीक है. देन मूविंग अहेड इज स्टेबलाइज योर फर्स्ट 15 मिनट्स रिदम. पहले के 15 मिनट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें ना आपको अपना एक कहते हैं ना फ्लो बनाना होता है, एक रिदम बनानी होती है. तो वो रिदम के लिए प्रैक्टिस स्लो एंट्री इनटू द फर्स्ट पैसेज. पहले पैसेज में थोड़ा आराम से आप एंट्री लो, आराम आराम से पढ़ो. कंट्रोल डिसीजन मेकिंग करो, जो भी आप ऑप्शंस को ऑप्ट करो वहां पे अपनी डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल्ड रखो. इमोशनली नहीं कि दिल ये कह रहा है, दिमाग ये कह रहा है, तो चलो ये कर रहा हूं, नहीं. सोच समझ के जो आपने कंसेप्ट्स पढ़े हैं, जो चीज़ें पढ़ी हैं, उनके बेसिस पे आपको आंसर फिगर आउट करना है और कंट्रोल डिसीजन मेकिंग करनी है. एंड काम एलिमिनेशन, ठीक है. एलिमिनेशन भी ये नहीं कि नहीं ये लग रहा है हटा दो, ये लग रहा है मेरे को लग रहा है गलत है हटा दो, ऐसा नहीं. आराम से सोच समझ के एलिमिनेट करना है, ठीक है. बिकॉज योर ओपनिंग रिदम शेप्स द एंटायर एग्जाम अटेम्प्ट, राइट. देन मूविंग अहेड इज अवॉइड न्यू मटेरियल कंप्लीटली. न्यू इन्फॉर्मेशन मीन्स कॉग्निटिव ओवरलोड, ब्रेन में अगेन ओवरलोड मीन्स रिड्यूस्ड रिकॉल. अब आप जो आज पढ़ोगे भी ना कुछ नया, सैटरडे को आ भी जाए तो आपको याद नहीं रहने वाला है. पहली बात आएगा भी नहीं वो संडे को, ठीक है. आ भी गया तो आपको याद नहीं रहेगा. तो मेक श्योर कि आप जो पढ़ रखा उसी को रिवाइज करो ठीक से. देन द लास्ट थिंग इज 1 मॉक ओनली, ठीक है. सिर्फ एक मॉक दो, ज्यादा 2 दे दो, बट सैटरडे को मत दो. एक आज दे दो, एक कल दे दो, ठीक है. बिकॉज एनालिसिस इज इक्वल्स टू इंप्रूवमेंट, अटेम्प्ट इज नॉट इंप्रूवमेंट. अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग कि अगर आप एक मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो, उसको अच्छे से एनालिसिस कर रहे हो आप, ठीक है. इफ यू आर डूइंग द एनालिसिस पार्ट प्रॉपरली, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन अटेम्प्टिंग कि मैं 2 मॉक्स अटेम्प्ट कर रहा हूं बिना किसी एनालिसिस के. देयर इज नो पॉइंट इन दैट. 1 मॉक विद वेरी गुड डिटेल्ड एनालिसिस इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है. देन मेंटेन कॉग्निटिव फ्रेशनेस. माइंड को, अपने आप को आप मेंटली फ्री रखो, फ्रेश रखो. अपना स्लीप शेड्यूल फिक्स रखो. स्क्रीन टाइम बिल्कुल बंद कर दो बेड से पहले, 2-3 दिन की बात है. नो लेट नाइट प्रैक्टिस की. कुछ लोग को होता है मैं रात में जग के पढ़ूंगा, रात में प्रैक्टिस करूंगा. अच्छी चीज़ है, करते हैं लोग, काफ़ी लोगों ने क्लियर किया, काफ़ी अभी भी करेंगे. बट अगेन इन जनरल देखो, नाइट सोने के लिए होती है, तो मेक श्योर कि उस टाइम आप सो, क्योंकि आपको अपनी बॉडी क्लॉक के हिसाब से चलना है, अपने हिसाब से नहीं. बॉडी डिमांड्स रेस्ट इन नाइट. तो यू माइट wake up, you might keep your body awake and say कि no, I am doing the same thing and I am able to spend my night productively
इन स्टडिंग, बट स्टिल जो मॉर्निंग में ना, मॉर्निंग फ्रेश 4-5 बजे 6 बजे के आसपास जो ब्रेन की वर्किंग कैपेसिटी होती है वो बहुत हाई होती है। तो रादर आई वुड से टाइम से सो और जल्दी उठ जाओ, ठीक है। नो लेट नाइट प्रैक्टिस एंड लाइट इनपुट इन इवनिंग्स, ठीक है। लाइट इनपुट मतलब शाम को हल्का हल्का रिविजन करो, ठीक है। अ फ्रेश माइंड ऑलवेज परफॉर्म्स बेटर देन अ ड्रेन्ड माइंड, ठीक है। देन स्कोर बूस्टर फॉर ईच सेक्शन। अब हम लोग सेक्शन वाइज एक बार देख लेते हैं कि सेक्शनली अगर आपको स्कोर बूस्ट करना तो क्या करना होगा। तो इन इंग्लिश सबसे पहले तो स्लो रीडिंग फास्टर एलिमिनेशन, मतलब आपको रीड आराम आराम से करना है, एलिमिनेट अपने आप आपका जल्दी होगा, ठीक है। सेंट्रल आइडिया एक्सट्रैक्शन, जो पैसेज का, क्योंकि ये आपके बोर्ड वाले फिक्शनल या आरसीज वैसे आरसीज नहीं है, आपको इनमें एक आइडिया एक्सट्रैक्ट करना होगा कि ये किस बारे में बात हो रही, टॉपिक क्या है इसका, ठीक है। एंड अवॉइड एडिंग एक्सटर्नल ओपिनियंस, बाहर से आपको कोई ओपिनियन नहीं लेना है, पैसेज के अंदर की जो बात हो रही है उसी में से ही आपको ओपिनियन बनाना है, उसी के हिसाब से आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग के लिए फाइंड कंक्लूजन प्लस सपोर्ट, कंक्लूजन क्या है उस आरसी का वो, और प्लस उसको सपोर्ट करने वाले आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या हैं, ठीक है। डिटेक्ट लॉजिकल लीप, क्या लॉजिकल लीप है वो फिगर आउट करने की कोशिश करो। एंड अवॉइड एक्सट्रीम ऑप्शंस, जो ऑप्शन एक्सट्रीम वाले होते हैं ना, जो कुछ ऑप्शंस दिए होते हैं एक्सट्रीम वाले, उनको अब अवॉइड करो, वो ज़्यादातर गलत होते हैं मोस्टली, ठीक है। देन लीगल रीजनिंग में अप्लाई प्रिंसिपल एग्जैक्टली, जैसा प्रिंसिपल दिया हुआ है आपको वैसे ही अप्लाई करना है। हमने काफ़ी बार अपने लाइव सेशंस में ये करके दिखाया, तो यू कैन रेफर टू दोज वीडियोज एज वेल। तो अप्लाई प्रिंसिपल्स एग्जैक्टली द वे इट हैज़ बीन गिवन, ठीक है। देन आइसोलेट ऑपरेटिव फैक्ट्स, ठीक है। एंड अवॉइड मॉरल जजमेंट, खुद से कि जो होता है ना कि यार मेरे हिसाब से इसको तो इसको देना चाहिए था, या मेरे हिसाब से इसका आंसर ये होना चाहिए। अपने आप को मॉरली मत ज़्यादा जाना आंसर फिगर आउट करने के लिए, एंड जस्ट स्टिक टू लीगल प्रिंसिपल्स। फॉर क्वांट्स प्रायोरिटाइज क्लीन सेट्स, ठीक है। यूज स्क्रैच पैड स्ट्रक्चर एंड स्किप अनक्लियर टेबल्स, जो टेबल्स आपको नहीं समझ में आ रहे उनको स्किप कर दो आप, ठीक है। So final message from my side students would be that performance in the last 3 days is driven by structure not by intensity। ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा इंटेंस होकर इंटेंस प्रैक्टिस करूँगा, इंटेंस रिविजन सेशंस कर लूँगा या कर लूँगी तो मेरा हो जाएगा, नहीं। अपने आप को बिल्कुल हल्का रखो आप, बिल्कुल, बिकॉज आपने थ्रू आउट द ईयर मेहनत की है। सो परफॉर्मेंस इन द लास्ट 3 days इज ड्रिवन बाय स्ट्रक्चर, क्या आपका स्ट्रक्चर होगा वो हमने डिस्कस कर ही लिया, नॉट बाय इंटेंसिटी। Maintain a predictable routine for the next 3 days, plus preserve cognitive freshness and prioritize accuracy. So we are, हमने इस सेशन में ना वही चीज़ों को बार बार रिपीट ही किया है मोस्टली। तो आई गेस कि आपको समझ में आ गया होगा हाउ यू हैव टू स्पेंड योर लास्ट 3 days, राइट। सो योर गोल इज अ स्टेबल, डिसिप्लिन, एरर कंट्रोल्ड अटेम्प्ट, ठीक है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स मोटा मोटी जो हम लोग इसका कंक्लूजन अगर निकाले इस पूरे डिस्कशन का, सो अवर डिस्कशन वाज अराउंड हाउ योर लास्ट 3 days शुड लुक लाइक। सो वी हैव आई हैव ट्राइड टू इवन गिव यू अ रूटीन फॉर इट कि आपको हाउ यू हैव टू स्पेंड योर लास्ट 3 days। Still, if you have any confusion, you have any query, you want to know about any concept, any revision you want to have, you just let us know in the comment section, and we are always there for you. Team iQuanta is always there for you, and just make sure that are not intensifying anything. Just keep it light, just keep it relaxed, keep it chill, और आराम से रहो, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। अच्छे से पूरे साल मेहनत की तो वो एग्जीक्यूट भी हम लोग करेंगे, ठीक है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो विद दिस all the very best for your upcoming 2-3 days, and all the very best for CLAT 2026 examination from Team iQuanta, from myself, and have a good day.